وہ اگر قرآن کوٹ کر رہے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو تو ریڈیفائن کر سک رہا ہے, یعنی یہ پاور مل رہا ہے کتاب میں سے. یعنی اس میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بائسڈ ہو کر, جو ٹرو میننگ ہے, ٹرو میننگ ہے, جس کو لغت سپورٹ کر رہی ہے, جس کو باقاعدہ لٹریسی گراؤنڈ کے اوپر لٹریچر کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ آپ کے اسکالر نے اس کے بارے میں نہیں کہا ہوگا, لیکن لغت سے پاور مل رہا ہے, روٹ سے پاور مل رہا ہے, دلیل موجود ہے, وہی لفظ دوسری جگہ پہ اسی سینس میں استعمال ہوا ہے, تو وہ اس کا جواب تو مل سک رہا ہے. لیکن سارا پرابلم وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں پر یہ لوگ سیرہ کی کہانیاں نکال کے سناتے ہیں, جہاں سے حدیثوں کی کہانیاں نکال کے سناتے ہیں. دین یو ڈونٹ ہیو اے آنسر. ابھی جیسے یہی آیت کہ ایک عورت بھول جائے, ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ججگی میں اگر ہے تو نہیں جا سکتی, اس لیے دو کی بات. نن آف یور اسکالر سیٹ دس ون. چلیے ٹھیک ہے, آپ اگر اس کو بولنے جائیں گے تو امیڈیٹلی وہ بولے گا شان نزول کے تحت میں یہ بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے. وہ حدیث پیش کر کے یہ بول دے گا کہ اس میں کیا بولا گیا تھا, عورت جو ہے یعنی اس کو عقل کم ہے بول کے بولا گیا ہے, اس کے اندر ناقص العقل ہے عورت. اب یہ اس آیت سے ریفرنس کے اندر ایک حدیث موجود ہے. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیفینڈ دس؟ میں اس پہ بہت غور کیا. تو اس کا آنسر تو وہی دے سکتا ہے جو کلیئر کٹ پہلے سے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ رکھتا ہوں کہ میں حدیث کو ویلڈ نہیں مانتا. بالکل. اگر وہ آدمی یہ بولتا ہے کہ صاحب میں سوائے اسلام میں قرآن کو یہ نہیں مانتا ہوں, دونوں کتابیں میرے نزدیک جھوٹی کتابیں, اس کے اندر جو کہا گیا ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے, ہم اسلام کو جانیں گے صرف قرآن کے کانٹیکسٹ میں, تو وہ پھر وہ اپنی بات کر سکتا ہے. لیکن جو حضرات سیرہ کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں, ان کے پاس میں اس کا جواب سوائے اپالوجسٹک ویو لینے کے اور کچھ بھی نہیں. دیکھیے کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو اس کو تین نظریوں سے دیکھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہجرہ کے 3 سال بعد, قریب 3.5 سال بعد جو ہے کچھ ایک مسئلہ پیدا ہوا جس میں 800 یہودیوں کا قتل ہوا. 800 Jews males were killed. 800 یہودی رسول اللہ کی وٹنس کے اندر مارے گئے, گردنیں نکال دی گئی ان کی, جس کے اندر علی اور یہ وہ سب مل کر پارٹیسپیٹ کیے. میرے کو نکو بیٹا. اب جب یہ حادثہ ہوتا ہے وہاں پر تو اس کو 3 نظریوں سے دیکھا جائے گا. ایک ہے مسلمان جو بولیں گے کہ بھئی ایک بغاوت ہونے والی تھی, نجاست تھی, گندگی تھی, اس سے جو ہے سوسائٹی کو جو ہے اسلامک اسٹیٹ فارم کرنا تھا, تو کچھ ایسے اسٹیپس لینے پڑے جس کے اندر ان کا قتل کرنا ریزنیبل تھا تاکہ سوسائٹی کی کلیننگ ہو گئی. مسلمز اس کو لیں گے کلین اپ پروسیس کے اندر. جو کافر ہے بیچارہ, جو کافر ہے وہ تو اس کو لے گا ایک ہاریفائنگ انسیڈنٹ کے طور پر. اور تیسرا جو ہے اب جو اسلام کو جو ریلیجن آف پیس بتانے والے لوگ ہیں وہ لیں گے ایک اپولوجسٹک ویو. نہیں وہ تاریخی بات تھی, وہ اس زمانے کے کلچر تھا, ایسا تو ہر مذہب میں ہوا ہے. آپ اگر بولتے ہیں کہ ہندوؤں کی جو بھگوت گیتا ان کی مقدس کتاب ہے اس میں بھی 65% تو مہا بھارت ہے نا, یہ سب اپولوجسٹک. آپ اسلام میں اپولوجسٹک اوپینین اگر رکھتے ہیں یا ویو رکھتے ہیں تو آپ کا ذاتی ویو ہے, آپ کے جیب میں رکھیے اس کو. آپ قرآن تو چیلنج ہے نہیں, وہ آپ جیب میں رکھیے اس کو. جو لوگ اسلام کو پیش کر رہے ہیں وہ ٹریالوجی میں سے پیش کرتے ہیں. وہ آپ کی قرآن بتا رہے ہیں, وہ آپ کی سیرہ بتا رہے ہیں, وہ آپ کی حدیثیں بتا رہے ہیں. جو ان میں لکھا ہوا ہے, واٹ ایور از دیر ان دا بلیک اینڈ وائٹ انٹو دس 3 ڈکٹرائنز از اسلام. اس میں سے آپ اوپینین کیا فارم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ذاتی رائے ہے. مثال کے طور پہ ہمارے گرو پیس کا اوپینین فارم کر رہے ہیں. جو کالے کپڑے پہن کے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارے دل سے کر رہے ہیں. وہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں, وہ اصحاب رسول نے کیا تھا وہ کہانیاں سنا رہے, رسول اللہ نے خود کیا تھا وہ کہانیاں سنا رہے, وہ بھی اسی میں سے لے رہے. تو unless and until we refuse these 2 sources as invalid sources and take Quran as a only valid source, جب تک
کا آپ جو ہے کسی کے ساتھ میں آپ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسلام کا رائٹ ویو آپ نیریشن, جس کو میں کہتا ہوں ایک نیریشن کی ضرورت ہے آج اسلام کو آج جو ضرورت ہے ایک نیو نیریشن کی ضرورت ہے. ڈیبیٹس دیکھو تم ان لوگوں کے, وہ لوگوں کے ساتھ میں بالکل ایسا بالکل بچے کو ہوتا ہے وہ کھڑا کر دیتے ہو. کوئی ڈیبیٹس آپ جیسا بولے ویسا انہیں ان کی آپ کی اتھارٹی کو ریفیوز نہیں کر سکتے. تو سیکنڈ اتھارٹی ہے جو انہیں یہی بول رہا صاحب. بل وارنر کیا بولتا ہے, جو کچھ لکھا ہوا ان 3 چیزوں میں ہے, قرآن میں, سیرہ میں اور حدیث میں, اور سیرہ کا ایک ہی واحد آتھر ہے جس کے اوپر مسلمز اینڈ نان مسلم ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ کون ہے؟ ابن اسحاق اور ابن ہشام. مدر سورس ہے, چاہے اورینٹلسٹ ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مسلمز ہو, تینوں اسی سورس میں سے لے رہے ہیں. اس کے اندر 98 غزوات بتائے گئے. پوری سیرہ کا لٹریچر 64% ڈیوٹیڈ ہے ٹورڈز دا ہیٹ ٹورڈز دا کافر. صاحب میں کافر کی نظر سے کتاب پڑھ رہا ہوں, کیا میں اسلام کو ریلیجن آف پیس ایکسیپٹ کر سکتا ہوں؟ بلا شبہ اسلام ایک ریلیجن آف پیس ہے, لیکن یہ ریلیجن آف پیس صرف قرآن میں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے, اس سے ہٹ کر اگر سیرہ کا مطالعہ کریں گے, اس سے ہٹ کر اگر وہ کیا بولتے ہیں غزوات, ماغز کے کچھ بولتے اس کو, مغازی کا مطالعہ اگر کریں گے, تو جو محمد رسول اللہ مکے کے اندر کام کرتے ہیں 13 سال آپ کی دعوت. ہمارے والد ایک بات بولے تھے جی, جو یہ غزوات اور جو تم جو قصے سنا ہے نا پورے, جس طریقے سے انہوں نے نریٹ کرے پورا قصہ, گلوریفائی کر کے گلوریفائی جو بھی کرے, رسول اللہ کی 1000 سال کی زندگی بھی کم پڑتی ہو. ہاں 98 غزوات کے 23 سال میں کیسا لگیں گے آدمی اسلام کو, بتائیے. 98 کو ڈیوائڈ کر کے دیکھو صاحب, 10 سال کا پیریڈ اگر لیں گے تو 520 ہفتے ہوتے ہیں. یعنی ہر 5 ہفتے کے اندر رسول ایک چھوٹی وار یا بڑی وار کے اندر انوالو ہے, چھوٹی وار یا بڑی وار میں انوالو ہے. آپ دیکھیے جو قرآن کے اوپر یہ جو ڈویژن کرتے ہیں نا آپ لوگ, یہ مکی صورت, یہ مدینی صورت, یہ ظاہر ہے, ظاہر ہے, یہ اللہ نے نہیں کیا ہے, یہ آپ کے علماء نے کیا ہے. جتنی قرآن کی مکی صورتیں ہیں جو 56% آف دا قرآن ہے, 56% آف دا قرآن از مکی. یقین مانیے مکی قرآن سے کسی نان مسلم کو ایک رتی کا کوئی پرابلم نہیں. نو آبجیکشن ان دا مکی قرآن. بیوٹیفل کتاب. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. آئیے بھائی نظامی بھائی, آئیے. آپ سے تو گلے ملیں گے بھائی, بہت دن ہو گئے. جی جی, اور کیا حال چال ہے, سب خیریت ہے؟ آئیے. بھائی نظامی بھائی اور شرفو بھائی ہمارے ہائیک کی جان ہے دونوں. نظامی بھائی آپ اگر ایک دن ہائیک پہ نہیں رہتے تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. تو اب آپ بولیے جو مکی پورشن ہے جو 56% ہے, اس قرآن سے کسی نان مسلم کو ایک رتی کا کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ وہاں آپ کو معلوم ہے پوری مکی قرآن میں جو 56% ہے ورڈ جہاد کا استعمال نہیں ہوا ہے اس کے اندر. ناٹ اے سنگل ٹائم دا ورڈ جہاد ہیز بین یوزڈ. پھر مدنی قرآن کے اندر تو جو سیرت کی بھی کتابیں آپ پڑھ لیجئے, جتنی بھی سیرتیں پڑھنی ہے پڑھ لیجئے, چاہے ماڈرن یا پرانی یا ابھی کی, مکے تک کا تو محمد رسول اللہ اتنے اسپریچول, اتنی بہترین پرسنالٹی, ایسا معاف, ایسا صبر, ایسی تعلیمات, کسی انسان کو اس شخص کے ساتھ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. جیسے یہ آدمی مکے سے نکل کے مدینہ آتے ہیں, وہاں سے جو تلوار ہاتھ میں پکڑا ہے کم بخت ہے, تو خبر میں اتارے تک کا تلوار کے ساتھ میں اتارے. یہ رسول کی ذات کے اوپر آخری ظلم تھا. تمہاری جنگ بدر جھوٹی, تمہاری جنگ احد جھوٹی. آرکالوجی کے اندر اس کو چھنی مار دیا گیا, چھنی. ٹام ہالینڈ اور ایسے بڑے بڑے لوگ, ہاں وہ لوگ تو لکھ رہے ہیں, وہ کیا بولتے ہیں آپ کے مکہ شہر 9th سینچری میں آیا. یس, آپ کو معلوم ہے مکہ شہر جو ہے ایگزسٹنس نہیں ہے. 740 تک کا دیر واز نو انفلوئنس ان دا ماڈرن ہسٹری آف مکہ اینی ویئر. طائف ہے, مکہ شہر ہی نہیں ہوا. طائف ہے. رسول اللہ از ناٹ فرام مکہ, از فرام پیٹرا بول رہا ہوں. نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے اس کی کہ پیٹرا سے تھے یا ادھر سے تھے, وہ لمبی باتیں ہیں.
وہ اس بات کو نہیں لیں گے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک کیریکٹر جس قسم سے ہم محمد رسول اللہ کا لفظ سن کر ساری باتوں کو کنسیڈر کرتے ہیں, یقین مانیے 692 تک کا دس کلمہ واز ناٹ دیر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اٹ کیم ان 692. 692 کی مراد کیا ہوتی ہے؟ رسول ڈائڈ ان 632, کلمہ کیم ان 692. 60 سال کے گیپ کے بعد عبد الملک ابن مروان, ان کی کٹر دشمنی, وہ کون تھا, زبیر اس کے ساتھ میں تھی, ہاں ناک کی دشمنی تھی یہ لوگوں کی. اس لیے کیا کیا کہ وہ حج کی ریونیو وہاں نہیں جانا بول کے اس نے ایک راک آف ڈوم بنائی وہاں پر, جس کو آپ وہ مسجد بولتے ہیں, مسجد الاقصی پکارتے ہیں آپ اس کو, ہاں؟ اس کے اوپر اس نے پورے رسول سے کنیکٹڈ آیتیں لکھی. وہاں پر اس نے پہلی مرتبہ کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد ایک کوائن بنائی جس میں محمد رسول اللہ کی فوٹو ڈالی اس نے. پھر وہ سیل بنائی اللہ محمد رسول, اللہ رسول محمد جو سیل ہے نا, محمد رسول اللہ, ہاں اللہ محمد ہاں محمد رسول اللہ. محمد نیچے سے شروع ہوتا ہے, محمد اب اس وقت جو IS کا جو ہاں جو جھنڈے پہ لگائی, رسول کا وہ تھا بولتے ہیں. دس سیل واز میڈ ان 694. نہیں وہ تو آپ کے اس پہ بھی تھی بولتے ہیں مہر نبوت. سب جھوٹی بات ہے, سب جھوٹی بات ہے. اب آج وقت اس میں ISS پہ ہے, دیکھیے جھنڈے کو. اچھا آپ ایک سیکنڈ آپ دیکھیے, اب یہ المیہ کو ذرا غور کیجیے. قرآن میں محمد رسول اللہ کا محمد کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ 4. یہ انڈیکس ہے, انڈیکس کھولیں گے, اس میں بھی انڈیکس کھولیں گے. آپ محمد کا لفظ ماریے, انڈیکس میں کتنی مرتبہ آنا چاہیے محمد کا لفظ؟ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. قرآن میں 4 مرتبہ آیا بھائی, تو انڈیکس میں کتنی مرتبہ آنا چاہیے؟ آواز نہیں آئی کس کی؟ 4 مرتبہ آنا چاہیے. کھولتا ہوں ابھی کھولتا ہوں, 288 مرتبہ آتا ہے محمد. ماریے ابھی نکالیں گے. ضمیروں کی طرف بھی لگا دیے وہ الائکا محمد, یا ایھا المدثر. اور محمد محمد بھائی وہ ہے نا, اچھا جہاں نبی بھی جو لفظ بریکٹ ہے پورا لگا محمد, دیا. ہر روز ادھر ہی جا رہا ہوں. لفظ محمد 4 مرتبہ آیا کیا؟ قرآن میں 4 مرتبہ. اور مزمل, مدثر. نہیں وہ سب نام من بعد اسمہ احمد بھی آیا. ایک جگہ ہے. نہیں یہ تو خالی ایک ہی جگہ ہے. یعنی جب مخاطب کیے گئے تو وہاں پہ بھی محمد لکھے لو. جانے کے اللہ حافظ. کہاں بھائی آ رہے ہیں, ہم دونوں مل کے کیک کاٹے نا, ہم دونوں فرینڈس ہیں, بہت اچھے فرینڈس ہیں نا, ہمارے فرینڈ ہے نا. بول دو نیند آ رہی ہے ابھی. بھائی صاحب یہ دیکھیے, یہ میں محمد مارا انڈیکس میں کتنی مرتبہ آیا؟ 274. How you can bracket? Arey, why don't you keep Quran simple? What Quran is saying, that's all. سمجھنے والا سمجھ جاتا, جو سمجھنا ہے آپ کیوں اس میں. اچھا, جو لٹریچر ہے ہمارا, جو لٹریچر ہے اسلام کا لٹریچر کیا ہے؟ قرآن ہے, سیرہ ہے اور حدیث ہے. اس لٹریچر کے ٹیسٹ کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 17% قرآن ہے, 36% جو ہے سیرہ ہے, ریمیننگ حدیث ہے. رائٹ, قرآن کا پورشن 17% ہے. قرآن مینس آپ کے مطابق اللہ, سیرہ اینڈ حدیث مینس محمد. واٹ رسول محمد, 86% محمد اینڈ 14% اللہ. اور پھر یہ بولا جاتا ہے اس 14% میں جو کچھ کہا گیا ہے اس 86% میں سمجھایا گیا. سب سے آسان چیز دنیا میں کس کو سمجھنا ہے؟ محمد کون تھے, انسان تھے یا خدا تھے؟ سارے مسلمان انسان مانتے ہیں. کسی بھی انسان کو انسانی کلام کو سمجھنا سب سے آسان ہے. تو اسلام کا لٹریچر فارچونیٹلی 86% ہیومن وائز ہے, ہیومن وائز ہے. وہ بھی محمد نے نہیں کہا ہے,
200 साल के बाद में कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने कहा है। मोहम्मद ने क्या कहा है वो अल्लाह की किताब के अंदर मौजूद है। वो जो भी रसूल पे किताब नाजिल हुई उसको जो भी बोलने का बोला गया था उसके अंदर मौजूद है पूरी बात। मैं कल वो परसों भूल गया कि रमज़ान है, क्योंकि नास्तिक आदमी हूँ, रोज़े रोज़े तो रखता नहीं हूँ। तो वाला संडे है, संडे का मरकज़ है, स्पीच तैयार करना रहेगा। तो उस्वा हुस्ना के ऊपर मैं जो है स्पीच तैयार कर रहा था मेरी, तो उसके अंदर मैं कुछ बातें जमा किया अपनी जगह। फिर याद आया कह रहे रमज़ान में मरकज़ ही नहीं है, तो लिहाजा कौन स्पीच बनाया, छोड़ दिया बाद में। अब आप सोचिए, हदीस की किताब जब आप उठाते हैं तो क्या क्या मिलता है उसमें, क्या मिलता है? बुखारी शरीफ जब हम खोलते हैं तो क्या मिलता है? हमको ये मिलता है कि कुछ लोग आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात करते हैं, रसूलुल्लाह उसकी तशरीह और उसके जवाबात फरमाते हैं। उसको इन्होंने सुना, इन्होंने सुना, इन्होंने सुना, ये बात उस किताब में मिलती है हमारे को, है ना भाई? जी बेशक। उस्वा हुस्ना यानी ये बोला गया है कि तुम्हारे प्रॉफिट में बेहतरीन मॉडल है, ब्यूटीफुल पैटर्न है। तो रसूल का पैटर्न हमको कहाँ मिलेगा? कौन बताएगा हमको कि रसूल का पैटर्न क्या था? हमारे हिसाब से तो कुरान बताएंगे, अल्लाह। हमारे मुहद्दिस कहते हैं कि मुहद्दिसीन की किताबों के अंदर रसूल का आपको उस्वा लेना पड़ेगा। उसमें क्या मिलेगा जाके पढ़ लीजिए। 6 साल की बच्ची की शादी से लेके स्लेव गर्ल के सेक्स के साथ में ले लेकर सारी बातें उसके अंदर मिलेगी, अच्छी बुरी दोनों मिलेगी। एक स्विंग कैरेक्टर मिलेगा। समटाइम ही बिकम मोर देन ए गॉड एंड समटाइम ही बिकम्स मोर देन ए डेविल। अब आप कंफ्यूज है कि मैं किस पैटर्न को पकड़ूं इसके अंदर से, दोनों सब मौजूद है। लोग बोल रहे हैं ये मुनाफिक है, अल्लाह बोल रहा है कि तुम अगर इनके लिए 70 मरतबा भी दुआ करेंगे तो मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा। तो हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह फरमाए कि मैं 71 वक्त दुआ करूँगा इनके वास्ते। तो ही हैज़ बिकम मोर देन गॉड। गॉड माफ़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन रसूल बोल रहा मैं गॉड से माफ़ी करवा के बता दूंगा तुम्हारे। तो समटाइम ही बिकम सो हाई एंड द सेम टाइम with another pendulum swing, he becomes the devil. He just go and marry a 6-year-old child. Just one time. He, सोचिए, कुरान में कहा गया कि तुम नाहक रसूलों का कत्ल करते हो। क्या क्या मतलब हो रहा है? कोई AK-47 ले आके मारने की बात हो रही या चाकू भोंकने की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो तुम लोग। पूरी हदीसों की किताब में कैरेक्टर असैसिनेशन है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मैं इसमें कोई तकल्लुफ नहीं करूँगा बोलने के कैरेक्टर को मस्त करना, मस्त कर देना, मशूक कर देना। मशूक क्या बोलते हैं आप लोग? मशूक बोलते हैं ना? नहीं वो नहीं, मनसूख नहीं साहब, वो यानी मशूक कर देना, ऐसा डाउटफुल बना देना कि पता नहीं। मशकूक बोल रहे हैं, मशकूक, हाँ, एक डाउटफुल पर्सनैलिटी बना देना उसको। सही है। आप सोचिए जलालत की आखिरी इंतहा। ये मैं इसलिए बार बार ये बातें कहता हूं ताकि इंसान ये अच्छी तरीके से जान ले कि हदीसों में सिवाय जंग के और कुछ नहीं। नॉट ए सिंगल हदीस सपोर्ट्स द कुरान, नॉट ए सिंगल हदीस। मैंने बुखारी पूरी पढ़ी है, कवर टू कवर पढ़ी है। मुस्लिम मैंने कवर टू कवर पढ़ी है। तिरमिज़ी मैंने कवर टू कवर पढ़ी है। मैं अपने ज़िंदगी के 9 साल पढ़ाई के अंदर लगाया हूँ। 2 साल तक हदीस की किताबें पढ़ता रहा हूँ। खराइयत होती साहब, आप पढ़ नहीं सकते हो, बंद करके फेंकना पड़ता है, क्योंकि एकेडमी है, उसको जानना ज़रूरी है। ये आदमी निकल कर मक्के में, क्या ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। एक गुलाम को आज़ाद कराते हैं जिसका नाम है ज़ैद, और उसको अपना बेटा बनाते हैं, अपना बेटा बनाते हैं उसको। वो मुंह बोला था या टू बोला था, वो सब की बात है। अपना बेटा डिक्लेयर करते हैं सोसाइटी में। उसकी बीवी जो ज़ैनब होती है
उसके ऊपर ये आदमी बुरी निगाह डालता है एंड ही गेट्स रेस्टलेस टू मैरी हर. शान नुज़ुल है. शान नुज़ुल बताएगी. आपने उसको बरहाना कपड़े बदलते हुए देखा, ये अल्फाज है हदीस के. जबकि फिर बोलते हैं उनकी कज़न भी है बोलते हैं. समझ रहे हैं. और फिर जो उनसे शादी करते हुए बताया गया, उससे तलाक दिलवाया गया और फिर उससे शादी बताई. अब आप सोचिए, क्या ये किसी पॉयस इंसान का कैरेक्टर हो सकता है कि अपनी बहू के ऊपर ऐसी निगाह डाले? 6 साल की बच्ची से शादी करता है आदमी, 9 साल में मैरिज कंज्यूमेट करता है. जावेद अहमद गामदी जैसा लफंगा ये बोलता है कि देखिए इसमें गलती हुई है मुहद्दिसीन से. एक मुहद्दिसीन से गलती ये हुई है कि अशरा इसमें से गिर गया. एक लिखना भूल गए भाई साहब, लॉलीपॉप किसके मुंह में दे रहे तुम ये सोचो. अशरा एक हदीस में से गिरा. 9 हदीसें हैं आयशा को लेके 6 साल की शादी की. 9 थाली के अंदर पेश किया गया सिल्क का कपड़ा पिना के. आयशा की खुद की जमान की बात है कि जब मेरी रुखसती हुई तो मैं गुड़ियाओं से खेल रही थी. 19 साल की बच्ची गुड़ियाओं से खेलेगी? हबीब हदीस गलत है, नहीं बोल सक रहे हो. नहीं बोलते. अशरा गिर गया बोल रहा साहब उसमें से. उन्होंने चलो निकलते हैं साहब. अच्छी बात है भाई, चलिए खुदा हाफिज. अच्छा, उन्होंने तो बोलेंगे साहब. जावेद अहमद गामदी साहब जो है, नहीं हदीस गलत है, नहीं बोल सकता कोई. इसमें दम नहीं है किसी. और हमारा गुरु ये कहता है, हमारा गुरु ये कहता है कि उस टाइम के वो क्या बोलते हैं अशराफ और शौरा जो होते थे वो वहाँ नहीं वो जो वहाँ के एलिट्स होते थे क्या शुरफाओं की ये एक वहाँ का दस्तूर का था कहते चाइल्ड मैरिज करना. तो आपने उस दस्तूर के मुताबिक की शादी. मिसालें भी देते कि हमारी दादी नानियों की शादी 13 साल में हो गई थी. हो गई 13 साल में 7 हो गई. ये रसूल निकल कर, जिसको आप मोहम्मद कहते हैं, द डुप्लीकेट कैरेक्टर, फिर निसा के अंदर क्या है? फिर निसा निकल के जाके लोगों को कुरान बता रहे हैं और ये कहते हैं कि कुरान मुझ पे नाजिल होती है. सूरह निसा पढ़ के सुना रहे हैं कि सूरह निसा में बोला गया कि तुम्हारी औरतों की शादियाँ तुम जब तक न करो, शऊर ना देखो, जब तक का कि वो फिजिकली बालिग ना हो जाए, निकाह के लायक ना हो जाए, जब तक का तुम उनकी निकाहें न करो और उनकी सुपुर्दगी यानी उनका माल जो हवाले करना है उसको औरत को. वाकई साजिश से पहले का है. उसके अंदर ये बोला जाता है जब तक का कि तुम उनमें रुश्द ना पाओ. रुश्द बिल्कुल किसको कहते हैं? रुश्द, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ द रुश्द इसको कहते हैं. इब्ने फारिस ये कहते हैं कि जब शख्स रुश्द की हालत में आता है तो वो 2 जनों की बहस को सुनकर अपना फैसला सुना सकता है. इतनी मैच्योर कंडीशन ना हो जाए जब तक का औरतों की निकाहें ना करो. कुरान सिखा रहा है वो आदमी और क्रॉस ड्रेसिंग करके ये बोलता है कि 6 साल की बच्ची से खुद शादी कर रहा है. कुरान में लिमिट आती है 4 औरतों से शादियों से ज़्यादा तुम नहीं कर सकते. और रसूल के लिए लिमिट ये आती है कि रसूल अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से निकाह नहीं कर सकता है. रसूल पर डबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसके बावजूद जाके 11 शादियाँ करता है. 33-56 में है तुम सेट की औरतों को, चाहे उनका हुस्न तुमको कितना ही अच्छा लगे. एक भी हदीस में आपसे कह सकता हूँ, हर हदीस कुरान को डिटोरिएट करने के लिए बनाई गई. अब हम जब तक बात को पूरी गहराई में जाके प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक का ये जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स है, जो अंग्रेज़ है, जो हाईली पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो इस्लाम पे एतराज़ कर रहे हैं, इनके एतराज़ात 100% वाजिब है. उनके एतराज़ात के अंदर क्या एतराज़ है? वो बोलता है औरत को वीक बताया गया, औरत को मारने की इजाज़त दी गई, फलाना दिया गया. ये इनके एलिगेशंस हैं. अभी जो ज़रूरत है, अगर इस्लाम को राइट रिप्रेजेंट करना है तो एक न्यू नरेशन की ज़रूरत है. उस नरेशन में बताना होगा कि कुरान में ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं है. और ये 2 सोर्सेज जो हैं जिसके अंदर से पूरी बात लोग लेते हैं, इन 2 सोर्सेज को ह्यूमन रिटर्न सोर्सेज हम मानते हैं. इसकी हमारे पास कोई वैलिडिटी नहीं. ना इब्ने इसाक को हम सच्चा मानते हैं, ना किसी मुहद्दिस को हम सच्चा मानते हैं. दोनों झूठे हैं. हम इनके किसी रेफरेंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते. अब आप सोचिए, बदर का लफ्ज़ आ गया, जंग खड़े कर दिया. मक्के का लफ्ज़ आ गया, फिर एक हुदैबिया खड़े कर दिए. कहाँ लिखी हुई हुदैबिया कुरान में? जो चीज़ कुरान में नहीं है, इतना पैरामाउंट कंसर्न कैसे बन जाता है किसी का? बताइए, हुदैबिया कुरान में है तो. और फिर
उसके बाद जो बात इनको मनवानी है, इसके लिए इनके पास एक ज़बरदस्त छड़ी है। आप हम जैसे लोग तो 2 मिनट में सरेंडर हो जाते हैं उस छड़ी में। वो है छड़ी नासिख और मनसूख के गौरव धंधे की। ये आयत वो शादी होने से बात की है, इसीलिए उसको मदीनी दौर के अंदर ले जाके डाला गया लाके। शादी मक्के के अंदर बताई गई। समझ रहे हैं आप? ये अच्छा बहुत अभी भाई एक बात ये है कि अगर इतने मतलब इतना आप जैसे ही पढ़े लोग बसन हो जाएं, लेकिन ये मुस्लिम उम्मत जो कहलाती है लेबल मुस्लिम्स, वो तो अकीदत उनकी बढ़ते जा रही है, अकीदत बढ़ते जा रही है। अकीदत काय की अकीदत? किसकी अकीदत? जुम्मतुल विदा। जुम्मतुल विदा है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं साहब। मैं आपको अभी एक वीडियो सुना दूंगा तो आपको कराहियत हो जाएगी। आज पेशाब मुबारक का पेशाब मुबारक। और खून भी खून भी है जी। तो कितने साहब रसूलुल्लाह का खून रोज निकाल के देते थे, खून रसूलुल्लाह पेशाब तो मीठा इलाज का तरीका था नहीं भाई, पेशाब तो ठीक है, मगर एक आदमी इतने साहबा खून पी गए तो कितना खून देना पड़ेगा रसूलुल्लाह को? आप देखिए साहब, पेशाब तो ठीक है, मैं आपसे जमदम के सारे खड़े सूप में जो 2 पेशाब मिला के प्याले का दूध जरा भी खराब कम भी तो ये बताइए ना अभी भाई कि उनकी अकीदत क्यों नहीं ख़त्म हो रही है या कम हो रही है, जब सुन रहे हैं सब तकद्दुस से सुन रहे फ़हीम हैं। एक बड़ी गहरी बात बोला साहब ने, अच्छा मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर। फ़हीम ये बोला, अगर तुमको इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्पीकर बनना है तो मैं एक फार्मूला देता हूँ, उसके ऊपर काम करो, लोग दीवाने हो जाएंगे तुम्हारे। अल्लाह को रसूल का मोहताज बताओ, रसूल की शख्सियत को अल्लाह से ऊपर ले लेके चले जाओ। लोग आपके पैरा नहीं पड़ते, रसूल से जोड़कर रसूल को खुदा ही बोलो तुम। खुदा को मोहताज बना पड़ता, मोहताज बना दो खुदा को। खुदा तो बोल रही है, खुदा तो बोल रही है, रसूल का मोहताज बना दो खुदा को। रसूल बोले ऐसा खुदा सुनना, तो जब आप देखो फिर जो आपकी जय जयकार होने वाली है। ताहिरुल क़ादरी बोले ना, देखे होंगे ना उसमें तौसीफ की जो उसमें है, हेकते बोल के अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिसने 2 जाने वो मुश्रिक काफिर है, वही मुस्तवी अर्श था। साहब आज जो ज़रूरी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक इज्तिहाद का प्रोसेस जारी करना। हर इंसान जो अल्लाह की किताब से प्यार करता है, अल्लाह से उसको मोहब्बत है, उसके ऊपर फ़र्ज़ का दर्जा रखता है कि कुरान का एक न्यू नरेशन दे, और बगैर डरे के दे, कोई लिहाज नहीं। आपको सुनने वाले कम मिलेंगे, कोई ख़ास बात नहीं मिलेंगे, कोई ख़ास ये बात तो है ना अभी भाई आयत है कि हर ज़माने में अक्सरियत गुमराही में रहेंगी। बिल्कुल। ये और अल्लाह ये नहीं बोल रहा खाली अक्सरियत गुमराही में रहेगी। वो मेरी एक स्पीच थी, उसके अंदर सुन्नतुल्लाह के अंदर ये आयत आती है, आखिरी आयतों में है, उसके अंदर ये बोलता है कि हर रसूल जो कहा है उसकी कौमें एंटी करेगी, और ये मेरी सुनन है। सुन्नत जमा में आया है, उसके अंदर सुनन। यस, ये इससे पहले से मेरी सुनन चले आ रही है कि जब कभी कोई किताब बताने की कोशिश करेगा उसकी एंटी तो होगी ही होगी। और तीसरी बात, अगर आपका ईमान इस किताब पे है, 33-38 में क्या कहा गया पढ़िए। हर दाई के लिए ये फ़र्ज़ है कि इस थ्योरी को अडॉप्ट करें। उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि ये अल्लाह के कलाम को पहुंचाने में जू का तू पहुंचाते और किसी से नहीं डरते। पैगंबर के लिए इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, जो अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। हाँ, यही अल्लाह की सुन्नत उन हाँ। पैगंबरों के मामले में रही है जो पहले गुजर चुके हैं। और अल्लाह का हुक्म एक ख़त्ई फ़ैसला होता है। ठीक, और आगे कहिए। वो अल्लाह के पैगामों को पहुंचाते थे और उसी से डरते थे, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। बिल्कुल। और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। आप अल्लाह का पैगाम ईमानदारी से ना पहुंचा दीजिए, वही हशर आपका होगा जो नबियों का हुआ है। मोहम्मद तुम्हारे आप सोचिए, बाइबल में आता है कि 6,75,000 बनी इसराइल एक्सकूड में, क्या उसको एक्सकूड के एक्सकूडस के अंदर आता है कि मूसा के साथ में जो दरिया पार किए थे, वो मदियान के जो मैदानों में गए थे लेकर आपको, 6,75,000। कुरान क्या कह रही है?
कुरान क्या कह रही है सुनिए, कुरान ये कह रही है कि चंद खलील नौजवानों के मूसा पे कोई ईमान नहीं लाया। इवन नूह अलैहिस्सलाम का भी हुई है। चंद खलील, few limited youngsters has believed मूसा, बाकी लोग डरे हुए थे, रोजी चली जाएगी, रिस्क चले जाएगा, घर से बेघर हो जाएंगे। आप जब तक अपनी जंजीरों से खुद मोहब्बत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नजात नहीं दिला सकती। Who loves their own chains, who can rescue them? आप पहले कंसर्न दीजिए कि आप जंजीरों में से बाहर आना चाहते हैं, तो फिर सब मदद है। उसके बाद जो अपनी खुद की जंजीरों से प्यार करते हैं, उनको कौन छुड़ाए? और हालत यह है आज की तारीख में कि कहीं जाते हैं हम लोग, कहीं रहते हैं, तो सिवाय समाज के कंसिडरेशन को लेते हुए अपनी ज़िंदगी को ढालने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची। आप जैसे स्टैंड अपने करेक्ट करते हैं, आपकी एंटी होनी शुरू हो जाती है। ये एंटी सिर्फ अकायद में नहीं होती है, इसका रिपोकेशन सिर्फ अकायद पे नहीं पड़ता है, आपके समाज पे भी पड़ता है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी पड़ता है, आपके कारोबारों में पड़ता है, आपके ताल्लुकात के अंदर पड़ता है, आपके लेन देन में पड़ता है, हर जगह पे रिश्तेदारियों में पड़ता है, हर जगह के ऊपर ये दीन जो है हर्डल बनना शुरू हो जाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं जहाँ तक समझ सका कि ये मजहबी लोग जितने भी होते हैं ना, ये तो बेचारे हैं, इनको वायरस लगा हुआ है, वायरस, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। टारगेट हमारा मजहबी लोग है ही नहीं, टारगेट हमारा सिंपल सेक्युलर माइंड लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्परमेंट रखते हैं। ये किताब दरअसल उनके वास्ते है। ये किताब का सारा डिस्कोर्स अच्छी फितरत के इंसानों के वास्ते है। मज़हब इनको बिगाड़ चुका है, कोई भी मज़हब, कोई भी। और मुसलमान इसकी कट्टर एंटी इसलिए करेंगे क्योंकि मुस्लिम अकीदे उनके अपने ओन हैं। अभी दीन के माने तो जो है उसके है, क्या बोलते हैं आपके लेजिस्लेशन के है, मालिकी में जिसको बोला गया है लेजिस्लेशन, वो तो कानून जो दीन खालिस अल्लाह का है, जिसको बोला गया है कि अल्लाह के कानून के ऊपर हम चलने वाले हैं। मैं दीन के माने वही है। मैं दीन के तीन तर्जुमे करता हूँ दीन के। मैं दीन का बुनियादी तर्जुमा मैं करता हूँ फैसला, लेजिस्लेशन जैसे ये कह रहे हैं, फैसला होता है, यानी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हाँ, जजमेंट, यानी जिसको कहेंगे हम फैसला। बेसिकली अल्लाह का फैसला सारे ज़मानों में सारे नबियों के साथ एक ही रहा। अब आप देखिए इस फैसले को अगर आप बारीकी से अगर प्रोसेस करेंगे, 42 की 13 नंबर की आयत पढ़ी, हमने वही दिन नूह को दिया, हमने वही दिन पूरा इब्राहिम को नहीं, उसके अंदर एक ख़ास वर्ड है जो एक वाज़े करेगा दीन को। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दिन मुकर्रर किया है जिसका उसने नूह को हुक्म दिया था। अरबी में शरअ लकुम हाँ। मिन अद-दीन हाँ, मा वस्सा बिही नूहन मा वस्सा भी के माने क्या होंगे? वस्सा, वसीयत, यानी हमने हमारे फैसले की वसीयत हमने सबसे पहले किस पे की? नूह पे की। फिर उसके बाद किसको की? फिर इब्राहिम। फिर ये वो एक ही वसीयत, यानी हमारी वसीयत, यानी वसीयत क्या बोलते हैं? वासे कौन हो? अल्लाह ही बात है। हाँ, करने वाला तो वासे अल्लाह है। वसीयत के माने क्या हुआ इसके अंदर? कि सेम लेगेसी को मैंने पास ऑन किया, मेरे सेम फैसले को। ये आए थे स्पेस एज में, स्टोन एज में, इनको कहा कि यही मेरा फैसला है, यही वसीयत इनके साथ थी, मेरी वही वसीयत इनके साथ थी। समझ रहा है? पूरे नामों के साथ में आ रहा। यानी अल्लाह अपने फैसले की वसीयत किया पूरे अंबियाओं को। मतलब वही रिपीट हो रही, समझो आप? वही रिपीट होती और कभी भी बदल नहीं सकता। आप इस बात को मान लीजिए कि कुरान जो है ये कहाँ से आई, कौन इसका रेसिपेंट है, कैसा आई या कैसी लिखी गई, हम नहीं जानते, इसके बारे में हम नहीं जानते।
खाली कहानियाँ बनाने से कोई मतलब नहीं। नहीं कोई आप ऑथेंटिक से बात नहीं कर सकते। मैं इसको सिर्फ इतना मानता हूँ, जिस तरीके से अल्लाह के क़वानीन 17 मिलियन साल से मौजूद है, इसी तरीके से अल्लाह का कलमा जिस दिन इंसान ज़मीन पर आया उससे पहले उसका कलमा रखा गया, उसका कलमा रखा गया। ये कलमा एक ही कलमा है जो हर दौर के अंदर हर नबी के साथ में चला आ रहा है, और इस कलमे का ताल्लुक़ ना तो सियासत से है, ना तो माशियत से है, ना तो किसी से है। ये कलमा ताल्लुक़ करता है तो सिर्फ एक चीज़ से, आपकी ओरिजिनल फितरत क्या होनी चाहिए। ये फितरत की जो तब्दीलियाँ मज़हब लाते हैं ये करेक्ट करता है। ये फितरत को करेक्ट क्यों कर रहा है, ये फितरत की करेक्शन क्यों कर रही है किताब, पूरा एम्फसाइज फितरत के करेक्शन पे क्यों है, इसमें तुम्हारा जिक्र है। ये किताब पूरी तुम्हारे बारे में बात कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। अल्लाह का दीन क्या है? अल्लाह का फैसला। और अल्लाह का फैसला क्या है? इस्लाम। हर इंसान सलामती हासिल कर ले, ये अल्लाह का फैसला है। किसी पे मौत ना आए जब तक का कि वो सलामती को ना इख्तियार किया हुआ। तुम्हारे से सलामती के अलावा कोई दूसरा फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये है, सलामती इसका बेस है। ये सलामती अपनी तौर पे कुछ नहीं करती है, अपने तौर पे सलामती पे होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सलामती कामयाबी के तरक्यात के और एलिवेशंस के पूरे दरवाजे हैं। उसके बाद ये पूरे दरवाजे खुलते हैं, जिससे कामयाबी हासिल होती है, जिससे अमन हासिल होता है, जिससे सुकून हासिल होता है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप तक पहुँचती हैं। इतना सिंपल इसका मैसेज है। जो मज़हब इस्लाम का अल्लाह है वो तो एक पेदमा गुड़ी का गॉड है, वो तो वर्स्ट गॉड है, वो तो एक पेगन है। ही इज़ ए पेगन, he is a pagan who lives into a house, and that too with a lock house. Now the question is whether the people have locked the god into the डब्बा। क्या मुसलमाना पकड़ के उसको अंदर बंद कर दे के कुफल डाल दिए, या जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह बंद, या अल्लाह मुसलमानों से बेजार होकर कुफल डाल के भाग गया वहां से मुसलमानों को छोड़ के। इन दोनों कंडीशंस के अंदर खुदा नॉन ऑपरेटिव है। इन दोनों कंडीशंस के अंदर मुस्लिम गॉड इज नॉन ऑपरेटिव। और सोचो, मक्का वाला खुदा, मक्का वाला काबे का खुदा, दैट यूजलेस गॉड हु कांट डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, खुद के घर के हाथे के अंदर क्रेन गिरता है जिसको हाथ लगा के बचा नहीं सकता है, वो तो तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसीलिए एक मेरे को कल एक बात समझ में आई साहब, हम लोग कभी भी अल्लाह को अल्लाह नहीं बोलते, अल्लाह ताला बोलते ये इसलिए समझ में आया कि उन्हें अपने घर की हिफाजत खुद ताले के भरोसे पे कर रहा उन्हें, इसलिए अल्लाह ताला है। ताला मार के अपनी हिफाजत कर ले रहा उन्हें, खुद ही डरा हुआ है बेचारा, मेरा कोई तो भी चुरा लेगा, मेरा रेप कर देगा, क्या करेगा नहीं वालों में, इसकी माँ का कुफल डालने के बैठो बोल रहा हूँ घर के अंदर, समझ रहे। इसीलिए कभी भी अल्लाह और ताले पे दोनों पे भरोसा करो, सिंगल भरोसा काफ़ी नहीं। लाखों का माल किसके भरोसे बोलते रबड़ाई थी। हाँ, लाखों का माल किसके भरोसे, बेकार बातें हैं। निज़ामी भाई, बची भी थोड़ी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को संवारो, अपनी फैमिली के ऊपर पूरा वक्त दो, अपनी पर्सनैलिटी को एलिवेट करो। ये देखो कि एक दिन, 2 दिन, 2 साल, 10 साल के बाद यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब के सब खबर में चले जाएंगे, सब पे मौत आ जाएगी। सिर्फ इतना गौर कर लो कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस मैंने हासिल किया या नहीं किया। मरने से पहले मैं जो इंसानियत का मखलूस था उनका ख़र्चा चुकाया या नहीं चुकाया। कुछ ऐसा काम करके मरो कि उसके बाद में एक चावल के दाने के बराबर ही सही वो रहमत और फैज़ इंसानियत को मिलता रहे। कोई छोटा ही काम, बड़ा नहीं हो सकता तो कोई ख़ास बात नहीं, कुछ कंट्रीब्यूट करो इंसानियत को। ये
खुदा के धोखे में से तो बाहर निकल जाओ, क्योंकि मोहम्मद आके सबसे बड़ा काम वही करे कि खुदा को ही मार के फेंक दिया उन्होंने। ला इलाहा इल्लल्लाह। व्हाट ए ग्रेट कलमा इट इज, फंटास्टिक कलमा। लोग इसको समझ नहीं सके। अभी भाई जो कहता है तो उसके अंदर अल्लाह के वर्ड के अंदर अभी भी कंफ्यूज है सब। नहीं, अल्लाह इज नॉट गॉड। अगर अल्लाह गॉड है और आप इतनी दुआएं अभी तक खुदा से करें, मैं कड़वा आदमी हूं सब, कोई मुझे बता सकता है किसी की एक दुआ कबूल हुई? नहीं होती। रॉन्ग नंबर है वो। यस, इट इज रॉन्ग नंबर। आप खत तो लिख रहे हैं, खत वहां तक जाता नहीं। आप पुकार तो रहे हैं, वहां तक पुकार जाती नहीं है। तो नो इट, नो द ग्राउंड रियलिटी, नो द ग्राउंड रियलिटी। आपका क्रिएटर क्या कह रहा है आपसे? मैं जो बना दिया उसके कानून फिक्स है, उसको जानो, उसी में तुम्हारी भलाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग कैन हैपन टू एनी वन। इस्लाम इज एज सिंपल एज दैट। और आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूटिज्म में जाकर मेरी किताब जो बोल रही है मैं सिर्फ वही मानूंगा, मेरा मज़हब जो बोल रहा है सिर्फ मैं वही मानूंगा। नहीं, अच्छाई जहाँ से भी मिले, जिस धर्म में से भी मिले, जिस जगह से भी मिले, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क आ सकता है, उन सबको सलाम कीजिए, उन सब से एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें कोई मजाक नहीं। और मुसलमान गारत क्यों हुआ? हारी साहब, मुसलमान गारत क्यों हुआ? मुसलमान के गारत होने की सिंगल वजह है, मुसलमान एब्सोल्यूटिज्म के अंदर जिंदा रहता है। एब्सोल्यूटिज्म समझते हैं? सदा कामिलियत। अपने पास जो भी उसकी बुक्स है या जो भी उसके खौल अखवाल है, वो उसको दर्जा कामिल तक का मुकम्मिल समझता है और उसको इनफैलेबल समझता है। यानी कोई चीज़ नहीं, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। चाहे उसके मफहूम और मफाद से अगर बात देखी जाए तो कॉमन सेंस के अंदर एक कौड़ी की भी फिटिंग नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद उसकी ना तो क्वेश्चन करता है ना तो रिजेक्ट करता है उसको। तो ये एब्सोल्यूटिज्म हमको गारत करके रखा है। एब्सोल्यूटिज्म बहुत पॉइजन है। आपके माइंड को ओपन रखिए। ये तो कायनात है, जो किताब है, इसमें से तो चीज़ें आती रहेगी, लोगों के खौल अखवाल में से आएगी, लोगों के अमल में से आएगी, हर जगह से सीख लीजिए। हाँ, स्टक हो जाता। एब्सोल्यूटिज्म के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सुई अटक जाती आगे नहीं। वो भी बता दिया ना कि तुम मुस्लिम है, चाहे तुम कितने भी घटिया हालत में हो, जब तुम मर गए, तुम अगर मुस्लिम रहे तो तुमको जन्नत तो मिलने ही वाली है कुछ दिन के बाद। साहब, मैं एक तकरीर किया था आखिरत को लेकर, उसको लेकर बहुत सीरियस स्कॉलर्स की तरफ से एतराज़ात आ रहे हैं मेरे पे। बहुत ही लोग कट भी गए उसके बाद में मेरे से। अहमदाबाद का काफ़ी बड़ा ग्रुप डिस्टर्ब हुआ है उससे। हकीकत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मौत के बाद में आपको उठाया जाएगा। ये एक इजिप्शियन मैथोलॉजी की थ्योरी है। दो इट इज़ अ वेरी हार्श टॉक व्हाट आई एम डूइंग। उस पे है ना, हिप पे है ना। हाँ, आप कौन है भाई? आप कौन है? एज ए बॉडी हम लोग कौन है? मैमल है हम लोग। मैमल एक फैमिली है जानवरों की, उन जानवरों की फैमिली का एक मेंबर है हम। उसके अंदर हमारे में एक इस्तिस्ना है, आला अक्ल और बोलने की सलाहियत। ये एक इस्तिस्ना है हमारे पास। लेकिन हम लोग एज ए पर्सनैलिटी वी आर मैमल्स। हम लोग बकरे के, गधे के, घोड़ों के भाई हैं। उस फैमिली से ताल्लुक़ करते हम लोग। आप बोलिए क्या आपके अकीदे में है बात कि बकरे से हिसाब लिया जाएगा, बकरे को दोबारा उठाया जाएगा? नहीं, तो आपको क्यों उठाया जाएगा? स्पेशल है ना तो। हाँ, मैं बताता हूँ ना आप कैसे स्पेशल है, वो भी बताता हूँ। वो स्पेशलिटी आपके अंदर कैसी है वो भी आपको बताता हूँ, और ये क्या चीज़ की वजह से पूरे फितने खड़े हो रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, आप मैमल्स हैं, मैमल की तरह आप भी मरेंगे। आप मैमल की तरह खाते हैं, मैमल की तरह बच्चे पैदा करते हैं, आपकी बच्चों की परवरिश जैसे दूसरे मैमल्स करते हैं उसी पैटर्न पे आप करते हैं। यू आर नथिंग बट अ मैमल, दैट्स ऑल। व्हेन यू डाई, जब हम मरते हैं,
when our mind, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, when our brain डेथ हमारी जब होती है, मेडिकल साइंस में उसको बोलते हैं ब्रेन डेथ, जब हमारी ब्रेन डेथ होती है तो उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस सीज्ड हो जाता है, एंड इट फेल्स टू सर्वाइव नहीं कर सकता है। इंसान खत्म, उसका कॉन्शियस भी उसके साथ में खत्म। हाँ, ब्रेन खत्म होने के बाद कोई काम नहीं करता कुछ नहीं। ये टेलीफोन में या एक कंप्यूटर, जायंट कंप्यूटर ले लीजिए, जायंट कंप्यूटर, उसके अंदर हार्ड डिस्क होती, उसमें मेमोरी बोर्ड होता, कितनी मेमोरी होती है उसके अंदर? हजारों लाखों मेगाबाइट गीगाबाइट्स की मेमोरीज होती है उसके अंदर। हाँ, या अभी हमारे जो टेलीफोन चल रहे हैं लोगों के, हाँ वो अगर देखेंगे तो हार्डवेयर देखेंगे तो इतने भयंकर रहते हो, उसको आग लगा के जला दीजिए। इस टेलीफोन में मेमोरी है ना साहब, हजारों लाखों मेमोरी है, इसको जला दीजिए, क्या होगा? मेमोरी सीज हो जाएगी, कॉन्शियस इसका फेल हो जाएगा। व्हेन ए पर्सन डाइज, इट कॉन्शियस ऑल्सो डाइज विथ इट, एंड इट सीजेस टू एग्जिस्ट, एंड इट फेल्स टू सर्वाइव। ये मेडिकल साइंस का मानना है और ये हकीकत है। अब आपको दूसरी दुनिया मजहब बन ही नहीं सकता है जब तक का दो कॉन्सेप्ट ना हो। एक कॉन्सेप्ट खुदा का चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आखिरत का चाहिए। सारी उधार की ज़िंदगी और एक नहीं दिखने वाली ताकत के अंदर अपनी आइडियलाइजेशंस, इसके ऊपर पूरा मजहब का ढांचा खड़ा हुआ है। जन्नत, दोज़ख, सवाब, ये पूरे कॉन्सेप्ट। और हर मजहब में ही, आपके मजहब में अकेले में नहीं, हर मजहब इसी पैटर्न पे वर्क करता है, चाहे उसका नाम कुछ भी होगा। यही गंदगी अलग अलग बॉटलों में अलग अलग नाम से भरी हुई है। अब यहाँ पर जो साबित शुदा हकीकत है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो वेरिफिकेशन हमारा एक ही है। ये वर्शिपों से आज तक का कुछ भी नहीं हुआ, ये प्रूफ फैक्ट। ना दुआओं से कुछ हुआ, ना वर्शिपों से कुछ हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ। हुआ कैसे? अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अल्लाह में क्या क्या चीज़ें हैं जानने से हुआ। अल्लाह आपको क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, अल्लाह आपका क्या नुकसान कर सकता है। जब जानकर उसको सर्व करें आप, तो आपकी ज़िंदगी में बहाली है। खुदा की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो 1400 साल पहले जुमला कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस किसी ने इस कलमे को जिस दौर में भी माना, जिस दौर में भी इस कलमे को माना कि नहीं है कोई खुदा, वो दुनिया का हाकिम और दुनिया का साइंटिस्ट बना। जितनी कौमें खुदा को मानती है वो आखिरी जहालत के अंदर आज भी है, चाहे उनका नाम हिंदू होगा, चाहे उनका नाम मुसलमान होगा, चाहे उनका नाम कुछ भी होगा। तरक्कियात वही कौमें करी है जो इन कॉन्सेप्ट से उतर के ग्राउंड रियलिटीज़ की हकीकत को समझ सके। रसूल आकर आपका क्या काम है? रसूलों का काम है इंसानों के गले में जो तौक़े पड़ी होती है और उनके पैरों में जो यगलान होते हैं, जंजीरें, उसको शटर करना, उसको तोड़कर उसको आज़ादी दिलाना। जंजीर सबसे बड़ी क्या थी इंसानियत के अंदर? कौन सी जंजीर आज भी जो सारी इंसानियत में पड़ी हुई है? एक तौक़ गले में है और एक जंजीर पैर में है। वो तौक़ है अल्लाह या खुदा, जिसको कहते हैं गॉड, GOD, और जंजीर पैर की आखिरत का बिलीफ। ये दो चीज़ें इंसान को गारत करती हैं। होगी नहीं होगी नहीं मालूम। जब आप रैशनल बात करना चाहते हैं तो रैशनल बात कीजिए, जब आप बिलीफ पे बात करना चाहते हैं, फेथ पे बात करना चाहते हैं, तो उसके अंदर तो बिल्ली की 5 टांग मांगो या 3 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपका मानना है। मगर अब जब हम लोग जो है ना, एक चीज़ को तो मानने वाले हैं ना, किताब को तो मानने वाले हैं। हाँ, तो किताब के अंदर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर तो फेथ है ना, उसके ऊपर मैं अभी आपको क्या बोला, आप एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहे हैं। किताब में जिस किस्म से आप आखिरत के लफ्ज़ को ट्रीट कर रहे हैं, कुरान का क्रिटिकल स्टडी ये बात सुनने के बाद में जाके कीजिए, आखिरत उस सेंस में किताब में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। फिर उठने के बाद फिर वो क्या है, फिर ऐसे पूरा वो है, पूरी चीज़ों का इनकार है, पूरी बात है। इनकार नहीं, अभी मैं बोलना चाह रहा हूँ उसकी मीनिंग है, मीनिंग है उसकी, मीनिंग अलग है। जैसा आप कुछ लोग सलाद के कुछ मीनिंग लिए हुए हैं, आप भी लिए हुए थे पहले, अभी बदल लिए गए। नहीं, वो तो आप भी वैसे ही बोलना चाह रहे हैं, आखिरत
उठाया जाना, ये सारी चीज़ें जो है उसकी एक मीनिंग है। तो उसके साथ ये जब नहीं है बोलते वो नए मीनिंग भी बता दिया तो कंफ्यूजन हुआ है। नहीं, आप जब उन आयत को तो थोड़ा शुरू होगा पढ़ेंगे, ना। देखिए अभी क्या होता कि हम लोग सेलेक्टिव पैसेजेस को लेकर बहस करते हैं, आयत का इतना का पोर्शन लेंगे उस पर बात करें। नहीं, कुरान रुकू में है, आयत में, फिर रुकू में है, फिर सूरे में है। ये डिवीजन है कुरान का, बेसिक डिवीजन जो है आयत, रुकू, सूरा। तो हर सूरे का कुछ ना कुछ एक टाइटल है, ठीक है। उस टाइटल पे पहले आधा घंटा गौर कीजिए, टाइटल क्या है, क्या सूरे में टाइटल के बारे में बात हो रही है पूरी? अगर हो रही है तो क्या बात हो रही है? उसके बाद में पूरी रुकू के अंदर जो पैसेज आ रहा है उसको निकाल के जब हम बारीकी से अगर पढ़ते हैं तो सारे क़यामत के अंजाम, आखिरत के अंजाम पूरे इस ज़मीन के ऊपर होते हुए वाक़ियों को बताया जा रहा है। इट इज़ नॉट एनीथिंग टू डू आफ्टर डेथ। कुरान के अंदर एक आयत आप मुझे नहीं बता सकते हैं जिसमें डायरेक्टली ये कहा गया है कि तुम्हारी फिजिकल डेथ के बाद में तुम्हारी एक दूसरी और जिंदगी। दो मौत दो जिंदगी। अरे प्रभु, मौत बोले तो आप डायरेक्ट बॉडी को मार दे रहे हैं। अब मौत का मैं अगर आपको काउंटर करूं यहाँ पर, हाँ, मुर्दार का एक काउंटर करूं मैं आपको, तो उसके अंदर क्या कहा? रसूल से कहा जा रहा है कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, और मुर्दे तुम्हारी बात नहीं सुन सकते हैं। वो पीठ फेर के चले जाते हैं। और जब मुर्दों को तुम्हारी बात सुनाते हैं तो वो पीठ फेर के चले जाते हैं। कौन सा मुर्दा है जो पीठ फेर के जाएगा भाई? आपके सेंस का मुर्दा अगर लेंगे तो गलत हो जाएगा, मेरे सेंस का मुर्दा लेंगे तो सही होगा। अक्ल के जो मुर्दे हैं उनको पहले कोई बात नहीं सुना सकते, और अगर सुनाएंगे भी तो पीठ फेर के चले जाएंगे। कहे हमारे बहन भाई साहब, नहीं समझ में है ये। नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। और आप एक उसूल बना लीजिए, ये मत देखिए कि कौन कह रहा है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कहने वाले के ब्रांड को पहले चेक करते हैं हम लोग। नहीं, ये सही तरीका नहीं। ये देखिए कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। उसकी बात को जाइए, ठंडे दिल के साथ में बैठिए। आखिरत और अव्वल, ये दो लफ्ज़ को अगर कुरान के अगर लेके आप स्क्रूटनी करेंगे, अव्वल ले लीजिए पहले, उसके बाद आखिरत लीजिए। 1-2 घंटे खाली ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आपको अव्वल और आखिरत मालूम पड़ जाएगी। क़यामत का वर्ड लीजिए, क़यामा का वर्ड लीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए। क़यामत कब होती है? हर मोमेंट जिसमें से आप डामाडोल में से गुजरते हैं, जब फैसला कुन नतीजा उसका आ जाता है। वो क्या था? अव्वल का आखिर निकला, आखिर की क़यामा होगी। एवरी डे 365 24 आवर्स के अंदर 10 मरतबा क़यामा होते रहती है आपके साथ। कुरान उस सेंस में यूज़ कर रहा है। मेरा सूरह क़यामा का तर्जुमा है, देखो, तुम पढ़ के देखो पाशा, तुम्हारे 2-3 बातों का जवाब मिल जाएगा। मैं अभी भी आपसे अदबन कर रहा हूँ। कुरान का मौजू गॉड नहीं है, कुरान का मौजू कॉन्शियसनेस है। एक टर्निंग पॉइंट है कुरान की स्टडी के अंदर। अगर इसका मौजू कुरान बना देंगे आप, यानी गॉड बना देंगे, हाँ, बताए थे 3 साल पहले। नहीं, मगर उसमें जैसा अभी मैं आपको एक बात बता, भाई ये तो इर्तिका है फ़हीम भाई, ये तो इर्तिकाई प्रोसेस में से गुजरेंगे आप। आपको बताया, देखिए कॉन्शियस है इसके 28 इसमें क्या लिखे जरा ये आयत जरा तुम कौन सी है? सूरह यूनुस 31 से 31 या 32। मतलब आप उस पर अटकिए मत। क्या लेंगे? ये तो होगा, ये तो चेंजेस आएंगे आपको। आज एक स्टैंड आप बनाए हुए हैं, फिर उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में उस स्टैंड के अंदर या तो अमेंडमेंट्स आएंगे या तो टोटल ड्रास्टिकली चेंज भी आ जाएगा। बर्नार्ड शॉ एक बड़ी अच्छी बात बोला था कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाते हैं, कोई शख्स अगर किसी चीज़ के बारे में अपना एक ओपिनियन बनाता है और 3 दिन तक वो अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करता है, या तो वो पत्थर है, या तो वो पत्थर है, या तो उसकी नफ्स जाके देखो, या तो मुर्दा है। अगर ज़िंदा इंसान होगा तो 3 दिन के अंदर अपने थॉट को रिफाइन करेगा, ग्रेजुएट करेगा, करेक्शन करेगा। 10 to 30 देयर विल बी लॉट ऑफ करेक्शंस।
اور اگر آپ ایک اسٹینڈ پہلے لے چکے ہیں کسی معاملے میں, دوبارہ اگر اس کا کریکٹیو اسٹینڈ اگر ملتا ہے تو دیر از نو ہارم ٹو سے دیٹ آئی واز رانگ. میں اس سے پہلے جو بات جانا تھا وہ تھوڑی ادھوری تھی, یہ بات اور اس کی میرے کو وضاحت کرتی. یہ ایک زندہ ذہن کی نشانی ہے, ہمیشہ چالو. یہ پروسیس صرف قرآن کے ساتھ میں نہیں ہے, یہ پروسیس بزنس میں بھی ہے, یہ پروسیس سائنس میں بھی ہے, یہ پروسیس جو ہے آپ کی لائف میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے پروسیس. اور جہاں پر بھی یہ نہیں ہے وہ سب لوگ ختم. ڈیڑھ وہ پھر تقلید میں چلے گا. کوئی نچا رہا ہے اور ناچ رہا ہے, اسپیسیفک دھپلی والا کوئی دھپلی بجا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کے گھنگرو تھرک رہے ہیں, وہ کام کی چیز نہیں. آپ اپنے کی باتوں کو جانیے فہیم بھائی, تو اس کے اندر آپ کو کیا ہوتا ہے, تھوڑی برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, اور وہ برین اسٹارمنگ بہت کام کی چیز ہے, بہت کام کی چیز ہے. سبجیکٹ کے ساتھ انوالومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور قرآن کی میں آیتوں کو جو دیکھ سکا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ورڈ آتا ہے, ہم عربی داں نہیں ہے, عربی نہیں جانتے ہیں, روٹ میں جاتے ہیں, ورڈ کو لیتے ہیں, قرآن میں دوسری جگہ جا کے دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو ایک ایسے میننگ پہ ارائیو ہونا پڑتا ہے جو بالکل ماڈرن سائنسز میں بھی اس کا جواب صحیح ہو, دنیا میں ہوتی ہوئی چیز بھی اس میں حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہو, سمجھ رہے نا, اور بات کے اندر ایکسیپٹنس بھی ہو. یہ تینوں کریٹیریا اس کے اندر فٹ ہو رہے ہیں نہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگ 282 کی تشریح کریں, ہو سکتا ہے وہ غلط ہوگی تشریح, لیکن ایٹ لیسٹ فزیکلی بھی اگر آپ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پرابلم عورت کے ساتھ ہے. اگر وہ بھول جائے, عورت جو ناقص عقل ہوتی, یہ باتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. عورت کو آپ ڈیگریڈ کر کے اس کی عقل کو آپ ناقص اگر بتائیں گے تو یہ ہیومینٹی کے اگینسٹ جا رہا ہے. اور بائی دا وے آپ کو یہ بتا دوں, چیلنج کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں, آپ بھول جائیں گے چیزوں کو لیکن عورت نہیں بھولے. خطرناک میموری کی مالک ہوتی ہے عورت, خطرناک میموری. 43 سال کے بعد میں جس کو چلغوزہ یاد آ سکتا ہے, سالہ انہیں کیا بھول سکتی, بولو آپ. ہاں ہاں, البتہ میٹرنیٹی لیو تو ہر کوئی عورت لگائے گی, چاہے اندرا گاندھی کو بھی بچے پیدا ہوں گے جب سالی جا کے اندر وہ ہو گئی ہوگی, گراؤنڈڈ ہو گئی ہوں گی انہیں بھی. چلیے, جزاک اللہ. ارے